Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta and today this video is really very special for me. Reason being आपको टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि today I'll be sharing someone's story. तो हुआ ये कि आज मैंने बहुत दिनों बाद अपना Facebook पे लॉगिन करा. मैं ऐसे ही चेक कर रही थी तो मैसेज रिक्वेस्ट में देख रही थी किसी के पेंडिंग मैसेजेस बहुत सारे थे उसमें. सो वन मैसेज कॉट माई आई और बहुत लंबा मैसेज था और मैंने पूरा पढ़ा एंड बाय द एंड ऑफ इट आई वॉज फीलिंग लाइक इट वॉज एन ऑ मोमेंट फॉर मी. मुझे खुद पे बहुत गर्व हो रहा था. सो आई विल बी रीडिंग दैट मैसेज. बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड मैं उनकी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. मैंने उनसे अभी परमिशन नहीं ली है, सो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीज़न आई विल नॉट रिवील हर नेम, पर मैं उनकी स्टोरी पढ़ना चाहती हूँ. द स्टोरी गोज़ लाइक, माई CA journey is such a long journey since I started doing CA from 2008. CPT I took 2 attempts, 2009 I got married, IPCC I took 4 attempts, CA final December 21 was my 8th attempt. I wrote 5 attempts from May 14 to May 16. I was staying in US in between those years as my husband worked there and had to come every time to write exams. I was so fed up at one point because of relatives asking about my result and when will I have baby, and gave up after May 16. Then in 2019 I delivered a baby boy. But I felt so incomplete within me and just unhappy inside always because I left the course. My dad is a CA, no one forced me to complete, but there was an empty feeling within which I never expressed with anyone. Then in 2020 I started back with all my close family support and wrote exams in November 20, July 21 and December 21. None of the relatives knew as due to corona visiting each other was stopped and everyone thought I would not start as I had a small baby. Finally, I cleared Group 2 with exemption in FR and it really a big success for him after such a long time. I wrote on a paper that why I want to be CA. After listening to your video and whenever I felt low, I started writing and it has helped me so much to vent out all my feelings which I cannot tell anyone. It helped me so much to move towards my goal. इसलिए आई ऑलवेज से कि लिखना बहुत ज़रूरी है. सो वन वीडियो विच शी फॉलोड कि आपको क्यों करना है जो भी आप करना चाह रहे हैं. सो दिस इज़ वॉट शी फॉलो. और इसके आगे की, दो आई एम हाफ वे थ्रू इट, it's a huge achievement for me. I followed you religiously, which you told in your videos exactly as you said. I never told anyone that how my exams went. For all the papers, I told I did well. SFM, I didn't know what will happen. It was the most difficult paper, old syllabus. But still I kept my mouth shut. I did not utter a word. Every day I used to listen to my recorded voice with all the positive affirmations which you wrote in one of your community posts with added things of mine, and that helped me so much to be positive. I even listen to your YouTube video every day during the exam time, which the one which I have shared. I'll leave that in the description box, that this is must listen before exam, do's and don'ts. So every day during the exam time, I used to listen that. For first time, I felt so positive after the exams. That's a huge compliment for me. I was just thinking about pass in my mark sheet, ignoring SFM. I had even saved my mobile home screen with marks in that pink format. That the thing which I talk about, the mock mark sheet बना के रखिए आप. I passed Group 2 and got exemption in FR, which is very good thing for me because this was a last attempt in old syllabus and in new syllabus FR is totally new and it's huge. I lost Group 1 because of SFM, but I'm really satisfied and happy. Everything happens for my good. I'm so blessed today to write this message to you. I'm so blessed to read it. I just have to write 3 more papers in May and I'm sure I'll be passed in this coming attempt and become CA. Thank you so much, Neha, from the bottom of my heart. You have helped me in many ways to be a better person and to change my thinking and filled so much positivity. Ho'oponopono prayer too helped me in many ways. I visualize my success every day. I'm trying to forgive people who hurt me and let go of the grudges. Vipassana meditation, yes, I'm doing it for 10 minutes only. It's helping me in many ways to balance my personal life too and to stay calm and patient and control my anger on my 3-year-old son because of his tantrums. The way I see life and people has changed to a greater extent. I would like to thank you for all the positivity you created before and during exam time. Through your videos, it has helped me so much. Thank you also for helping me to be a better human being and lead life more peacefully. So, उनका मैंने रिजल्ट देखा. I'll put a screenshot here उनके रिजल्ट का. She really scored an amazing marks और I can't even imagine कि छोटे बच्चे के साथ कोई इतना डेडिकेटेडली पढ़ाई कैसे कर सकता है. It's huge. हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तब भी हम इतने बहाने बनाते हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्या करें. उन्होंने बेबी के साथ कैसे मैनेज करा.
आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम सुपर प्राउड ऑफ़ यू। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बातों को जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ के उसको एक्चुअली अप्लाई करा अपनी लाइफ में। यू नो, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई क्वालिफाइड एंड व्हेन आई स्टार्टेड शेयरिंग दीज थिंग्स ऑन माई चैनल, मैंने जब पहली बार एफर्मेशंस के बारे में या मेडिटेशन के बारे में या बिलीफ, फेथ और एनर्जी हीलिंग, होपोनोपोनो प्रेयर, सब के बारे में जब मैंने पहली बार बोलना शुरू करा, आई वॉज़ रियली हेजिटेंट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मुझे लगा कि कोई क्या सोचेगा। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे दोस्त या मेरे पेरेंट्स या मेरे रिलेटिव जो मेरा चैनल शुरू में देखते हैं, जिन्होंने देखना सबसे पहले वही सब्सक्राइबर्स थे, मेरे जानने वाले लोग ही, तो मुझे लगा उन्हें लगेगा कि व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट, कैसी बातें कर रही है। आज के टाइम में ऐसी सुपरस्टिशियस बातें कर रही है कि लिखो तो ये हो जाएगा, ये प्रेयर करो तो ये हो जाएगा, लोगों को माफ़ कर दो तो ऐसा हो जाएगा। आई वॉज़ रियली हेजिटेंट, पर मुझे ये पता था कि ये चीज़ें मैंने खुद पर अप्लाई करी हैं, क्योंकि देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ जब कुछ भी ना अपने हिसाब से नहीं जाता, तो उस टाइम पे आपको लगता है, हैव यू हर्ड दैट डूबते को तिनके का सहारा, उस टाइम लगता है कि जो भी चीज़ दिख रही है ना अप्लाई कर लो, क्या पता काम कर जाए। मैंने वही करा था, मेरे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा था, मेरी माई लाइफ वॉज कम्प्लीट अ मेस। तो मुझे उस टाइम पे जो चीज़ें समझ आती गई, शायद यूनिवर्स वॉज हेल्पिंग मी आउट, मुझे नई नई चीज़ें मिलती गई, मैंने उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करा। चाहे इसी टाइम पे मुझे विपस्सना मेडिटेशन का पता चला, होपोनोपोनो प्रेयर का पता चला, मैंने एफर्मेशंस के बारे में पढ़ा, उनसे लिखना शुरू करा। और ये चीज़ के बारे में मैं इसलिए हेजिटेंट थी कि एक तो पहली बात तो लोग शायद मुझे जज करेंगे कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इतनी प्रोफेशनल कोर्स में होके और आज के टाइम पे होके मैं कैसी सुपरस्टिशियस बातें कर रही हूँ, दिस स्टफ डजंट इवन वर्क, और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ऑनेस्टली जब मैंने बोलना शुरू करा था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये मुझ पर काम करा है। मैं बोलना चाहती थी कैमरा पर आके लोगों के सामने कि मेरी तरह अगर कोई वहाँ पर स्टक है, क्या पता वो उसके लिए भी काम कर जाए, क्योंकि मुझे पता था मेरे ऊपर काम कर रही है ये चीज़। तो अगर मेरी बात सुन के कोई एक इंसान भी उस मेस से बाहर आ पाए या वो कुछ अचीव करना चाहता है तो कर पाए, मैं उसको सही मेंटल स्टेट में ला पाऊँ किसी एक इंसान को भी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने इसी सोच के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट करा, चैनल स्टार्ट करा और ये सब बोलना शुरू करा। एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी कि कितने लोगों ने उस चीज़ से कनेक्ट करा। और तब तक भी यही था कि इस चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ थोड़ी है कि क्या हो रहा है, क्या पता इसके लिए काम कर गया और बाकियों के लिए करे ना करे। बट टू माई सरप्राइज जब सीए का रिज़ल्ट आया, फाइनल का भी और इंटर का भी, और जब लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ मुझे भेजी, आई वॉज सो हैप्पी दैट डे। मैं शायद अपने रिज़ल्ट पे भी इतनी खुश नहीं थी कि उस दिन जो मुझे एक प्राउड मेंटर वाली फीलिंग आ रही थी ना कि मैं भले ही मुझे 9 साल लग गए, पर मैं किसी को उस चीज़ से, उस मेंटल स्टेट से बाहर ला पाई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रिज़ल्ट के अभी जब रिज़ल्ट आया था फाइनल का, उसके 2-3 दिन बाद देयर इज़ अ गर्ल, उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था, क्योंकि वो मेरी उन्होंने मुझसे पर्सनल मेंटरिंग ली थी कॉल के थ्रू अपने अटेम्प्ट से पहले। जब मेरी उनसे बात हुई थी, शी वॉज सो डिप्रेस्ड, मतलब शी वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड, उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ भी थे, उसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस थी। आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हर, मैंने उन्हें एक सही मेंटल स्टेट में लाने की कोशिश करी कि मैंने एक पर्सपेक्टिव दे पाऊँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो हमें लगता है कि बस यही जीवन है, जो मतलब मेरी लाइफ मैस हो गई है उसके अंदर। पर मैं उसी टाइम एक कुएं से बाहर आई थी, तो मैं बाहर का व्यू देख सकती थी, और मैं जो कुएं में उसको अपना हाथ देकर उसको बाहर निकाल सकती थी कि बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ हॉरिबल चीज़ नहीं है, तुम बाहर आ जाओगे उससे। सो आई वांटेड टू बी दैट पर्सन। तो मैंने मेंटरिंग में मैं जो भी उनको पर्सपेक्टिव दे सकती थी चीज़ों के लिए, या उन्हें एक नया सोचने का तरीका, या किस तरह से वो क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर सकती हैं, मैंने उन्हें बताया। और रिज़ल्ट के 2-3 दिन बाद उनका कॉल आया, रात को 10 बजे मैं लॉग ऑफ करा था सिर्फ, और उनका कॉल आया। आई कुडंट रिमेंबर कि कौन, जब उन्होंने नाम बताया, शी वॉज सो हैप्पी। आई कांट इवन पुट इन टू वर्ड्स, जो उनकी आवाज़ में जो वो था ना, एक अलग ही एनर्जी होती है। शी क्वालिफाइड आफ्टर 9-10 लॉन्ग ईयर्स, उनका ओल्ड कोर्स का बस एक ग्रुप बच रहा था। शी वॉज सो हैप्पी एंड शी वॉज लाइक, आप मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं आपको अभी गिफ्ट भेजूंगी। मैंने कहा इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पास हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। और द मेल्स आई रिसीव्ड ऑन दैट डे कि हमारे पेरेंट्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, हमने आपकी जर्नी वाली वीडियो उनको दिखाई और हमने बताया कि हमने आपसे मेंटरिंग लेके, आपसे बातें पूछ के कुछ अप्लाई करी चीज़ें, तो हमारे पेरेंट्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप बस खुश रहें हमेशा। आई वॉज फीलिंग कि कोई भी शायद मनी के टर्म्स में अगर मैं देखूँ ना, मुझे इतनी खुशी, इतना सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं दे पाएगा जितना कि ये सब बातें दे रही हैं। और अभी बहुत सारे लोगों ने मैंने जितने भी मेरे पास मेल्स मैसेजेस आए, उसमें से मैक्सिमम का मैंने ट्राई करा कि मैं उनकी स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे पोस्ट कर पाऊँ, ताकि बाकी लोग उसको देख के समझें कि ये चीज़ का ना, जो हम पूछते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का, ऑप्टिमिस्टिक होने का, एफर्मेशंस का क्या साइंटिफिक प्रूफ है, ये काम करता भी नहीं करता, तो आपको पता चले कि
ये चीज़ तभी आपको एक्सपीरियंस होगी जब आप उसे एक्सपीरियंस करोगे, लाइक गिव इट अ ट्राई, तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, आप मेरी प्रोफाइल चेक करो, वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है स्टोरी प्राउड मेंटर, वहाँ पे उसका नाम है, उसको चेक करो, उसमें लोगों की स्टोरी पढ़ो, दीज थिंग्स रियली हैव वर्कड फॉर देम। तो अभी उसके बाद जब मैंने वो स्टोरीज शेयर करी तो बहुत मैनी पीपल रीच्ड आउट टू मी कि हमें आपसे मेंटरिंग लेनी है, पर्सनल मेंटरिंग कर दीजिए। एंड ऑनेस्टली माय शेड्यूल वाज नॉट अलाउइंग कि मैं पर्सनल मेंटरिंग कर लूँ। ऑल्दो जॉब ज्वाइन करने से पहले मैं 100 लोगों को मेंटर कर चुकी थी पर्सनल कॉल करके, पर अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एंड थैंक्स टू मेंटोफाई कि दे कम टू हेल्प मी आउट इन दिस। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे ज़्यादा लोगों से बात कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नॉलेज नई निकाली है, पर मैं जब उसमें फंसी हुई थी तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, अप्लाई करी और लोगों को भी करवाई, उनके लिए भी वर्क करा। सो नाउ आई वांट कि जब मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं ना, पीपल साउंड सो डिप्रेस्ड, और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं सारे मेल्स आंसर कर दूँ, पर मेरी कोई टीम नहीं है, ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, तो मैं आंसर नहीं कर पाती सारे मेल्स। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ सेशन कंडक्ट करूँ जहाँ पर मैं ज़्यादा लोगों से एक टाइम पर कनेक्ट कर पाऊँ, उनकी क्वेरी सुन पाऊँ, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ अगर, तो एक तो मेल आंसर सारी नहीं हो पाती, इसलिए आई थॉट कि चलो मैं लाइव आकर कर लेती हूँ। पर यूट्यूब पर लाइव आकर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रह जाते हैं, मैं नहीं एड्रेस कर पाती, क्योंकि कुछ देयर आर सम पीपल जो स्पैम कर देते हैं, मतलब कुछ सेम चीज़ लिख रहे हैं बार बार, उसकी वजह से सारे वो जो जिनकी लिटरली क्वेरी है वो रह जाती है। इसलिए मैंने बहुत नॉमिनल फीस रखी है। संडे को वी आर डूइंग दिस सेशन। लिंक टू रजिस्टर आई एम लीविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसे चेक करें, खुद को रजिस्टर करें वहाँ पर। यहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों की बात सुन पाऊँगी सेम टाइम पे। आई विल ट्राई टू कीप इट 2-2.5 घंटे का सेशन, जहाँ पे मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पर अपनी क्वेरी लिख देना, ताकि मुझे सेशन में आने से पहले पता रहे कि क्या क्या क्वेरीज़ हैं। तो कॉमन क्वेरीज़ को मैं एक्यूमुलेट कर लूँ और उसके बाद जो भी आपकी बात है मैं सुन पाऊँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ आकर, मैं कभी आपसे भी सुनना चाहूँगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैं आपसे एक लाइव इंटरेक्शन कर सकूँ। तो ये पहला मैंने इनिशिएटिव कह सकते हैं मेरी साइड से कि मैं ट्राई करके देखना चाहती थी कि मैं एक सेशन करूं जहाँ पे मैं लोगों से बात कर रही हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ सिर्फ, सामने आप सुन रहे हैं। मैं आपसे, आपकी क्वेरी कुछ है तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। और इसका पर्पज़ ये है, ज़्यादा लोगों को बुलाने का पर्पज़ ये है, पहली चीज़ तो ऑब्वियसली मुझे टाइम इश्यूज़ की वजह से ये करना पड़ा कि ज़्यादा लोगों को मैं एक साथ एड्रेस कर पाऊँ। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें बहुत बार लगता है कि हम ही अकेले फंसे हुए हैं शायद। मुझे तो बहुत लगता था, मैं बहुत बार नहीं पढ़ पाती थी, ये सोच के कि ये सी का एग्ज़ाम जो भी अपीयर कर रहा है कंट्री में, वो सारे लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो ये सेशन रखने का ये पर्पज़ भी है, ज़्यादा लोगों को एक साथ, कि आपको समझ आए कि जो क्वेरीज या जो प्रॉब्लम्स आप इश्यूज़ फेस करते हैं वो ऑलमोस्ट सबके साथ हैं। सारे स्टूडेंट्स गो थ्रू सेम इश्यूज़ जो हमें एज अ स्टूडेंट होते हैं। हमें कंसिस्टेंसी का इशू होता है, हमें एनजाइटी हो रही है, हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो सबको हो रहा है वो चीज़। तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं हो रहा आपके साथ। और अगर किसी को लगे कि उनकी बहुत कोई पर्सनल क्वेरी है, क्योंकि मैंने लोगों के बहुत पर्सनल इश्यूज़ भी सुने हैं जो वो किसी को नहीं बोल सकते और वो किसी के सामने ऐसे कहने में कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर किसी का ऐसा कोई इशू है, सो आई विल ब्रिंग पर्सनल मेंटरिंग फॉर दैट। पर अभी अगर किसी के कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि आप दूसरों के सामने बताने में कंफर्टेबल हैं, मतलब दूसरों कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों का मैं नहीं रख रही सेशन, आई एम कीपिंग इट अ वेरी लिमिटेड, वो वेरी लिमिटेड पीपल, बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं हमने। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उस सेशन में आके पूछ सकते हैं। संडे को हम ये सेशन कर रहे हैं, जो भी डिटेल्स हैं आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको चेक कर लें। वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा बेयर विद इट। मैं एक और स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आई वाज सो हैप्पी रीडिंग ऑल दी स्टोरीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मैं शायद कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रही हूँ इसमें। सो अनदर स्टोरी गोज़ लाइक, yeah, she specifically asked her to keep her anonymous, तो मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ। So my story is so much sobering. You can imagine the struggle of 8-9 years where you are just fighting to achieve something alone. So she's a qualified company secretary now. Each day is passing and you are just stuck with one promise that you made to yourself. I get flashes of these past years every now and then. I was doing much better in everyone's eyes, but in my head, it was just not enough. I was a school topper. I couldn't digest that. How could I fail? How am I unable to clear this exam? The pressure I built was by myself, not by anyone around. Every time I visited India, I would just lock myself and study. Never used to tell my friends and relatives that I am home, just so that I could concentrate on my studies. I visited India several times. She lives in Dubai, actually. So I visited India several times alone for giving this exam only. I would stay at my parents' home to prepare for it, as I have a kid to take care of as well. So she is a mom as well. Just after exam, I used to go to in-laws, as can't stay much at parents' house, as in log kya kahenge.
would come from in-laws side. I remember the initial days when I got married in 2014. I enrolled myself for a coaching class which was only on weekend, as weekdays I was working. There was so much pressure for me as a new daughter-in-law. My mother-in-law wouldn't like that I'm leaving home and studying on weekend. One fine day I said, "Mom, I'm going for my coaching class." She banged the door on my face and said, "Haan jao." I cried and couldn't go anywhere as I couldn't control my emotions. I went to a nearby Gurdwara and not to my class, sat there and cried. Came back home after 3 hours as I had to be a good daughter-in-law. I have goosebumps कि लोग कितनी कैसी सिचुएशन से बाहर आते हैं. Came back home after 3 hours as I had to be a good daughter-in-law. Thankfully, we shifted out of India after that. I had lesser number of people to be accountable for. The struggle continued. People who knew I was reappearing in exam kept on laughing and making fun. These were the close relatives who themselves have never achieved anything in their lives. After a while, I stopped sharing it with anyone that I am even preparing and appearing for any exam. It was a solo journey altogether. My husband always supported me and always stood by me, but still I had to handle the society on my own. All these years I have changed so much. If I compare myself to the person I was earlier, I can count the number of friends I have on my fingers now. While I was the one who used to talk to and was being loved by everyone in school and college. I was a confident girl, I was a head girl of school, used to handle so many things on my own, but this journey shattered me completely and made me a different person altogether. I am so much relieved what happened on 25th Feb. On 25th Feb she qualified. So उन्होंने पहला मैसेज मुझे ये करा था. मैंने ये स्टोरी उनसे कहा कि आप प्लीज़ अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिख के दें. आई वॉन्ट टू रीड एग्जैक्टली ऑन द कैमरा. So what she wrote in the first place, I wanted to tell you that hi Neha, I wanted to tell you that I came across your videos on the YouTube when I was preparing for my CS professional exam in December. This was, I don't know which number of attempt. I was stuck with just one exam. She was just left with one taxation paper, because of which my degree was pending. Rest of the papers in the module were exempted. So I had to score 50 marks in that exam to clear the module. I was able to score near to 35 to 40 many times, but 50 was so tough for me as I was working full time and also a mother of 4-year-old. I was residing out of India mostly for the past 7 years, so that made it more difficult for me to visit India for giving exam. Tried many times but no luck. This was the last time when I was appearing for the exam, as this time as after this syllabus was going to change and I was sure I will not be able to give more exam as per new syllabus. So I was just left with this one attempt. Your video on manifestation popped all of a sudden while I was looking at some topic online. I went through 5-6 videos of yours after that. And after that day I wrote, I am going to clear my tax exam in December 21 several times on a sheet of paper. Here I am attaching what she wrote. And guess what? 25th February 2022, the day for which I was waiting since last 8 years, came with the good news. I got exactly 50. I just thank God for sending your video as a messenger. I have a deep belief in the power of manifestation now. Thank you for uploading that video. Thank you for sharing what you went through. Thank you for helping others through your videos. God bless you, dear. Lots of good wishes from my side. Thank you. So here I am attaching her result and what she wrote. She just wanted कि मुझे 50 marks मिल जाए and that's exactly what she got. ये है power of manifestation, ये है power of positive thinking और ये है power अपना mindset shift करने का. So this is what I want to tell. आई न्यू कि मैं शायद सब तक नहीं पहुंच पाऊंगी अगर मैं पर्सनली जाके अपने दोस्तों से या किसी को बताऊंगी, बट चैनल स्टार्ट करने का पर्पज़ यही था कि मैं किसी को बता पाऊँ कि द ट्रू पावर रिजाइड्स विद इन यू. तो अगर आपको अभी भी लगता है कि हम कैसे अपना रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं या हम कैसे करें इस चीज़ को, पॉसिबल है नहीं है, सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू कि आप उस सेशन में आइए. आपकी कोई क्वेरी है तो मैं शायद एक अलग पर्सपेक्टिव दे पाऊँ आपको कि आपको सोचना किस तरह से है. आप सही सोचेंगे तो सही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी. और मैंने प्राइसिंग इस सेशन की बहुत नॉमिनल रखी है ये सोच के कि अगर मैं स्टूडेंट होती तो क्या मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करती किसी चीज़ में. तो जब आप आया कि हाँ नेहा इतने पैसे तो मैं दे देती, तो मैंने उतना ही प्राइस रखा है. तो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है. आई होप कि संडे आप आएंगे सेशन में. 2-2.5 घंटे का सेशन है. टाइमिंग्स और जो भी डिटेल्स हैं दैट आई विल बी गिविंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू सम होप अगर आप वहाँ फंसे हुए हैं अभी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय.